இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் யாவருக்கும் எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். यीशु मसीह के नाम से आप सभी को हम बधाई देते हैं। இன்றைக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நான் கொடுத்திருக்கிற தலைப்பு ஜாக்கிரதையாய் இரு. आज के दिन में हम प्रभु का वचन को हम दिया हुआ वो हेडिंग है चेतावनी के साथ रहो। நாம் வாசிக்க கேட்கலாமா? हम पढ़ता हुआ सुनेंगे। 1 தீமோத்தேயு 4ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம். पहले तीमुथियुस में 4 अध्याय में 13वां वचन। நான் வருமளவும் வாசிக்கிறதிலும் புத்தி சொல்லுகிறதிலும் உபதேசிக்கிறதிலும் ஜாக்கிரதையாயிரு. मेरे आने तक जो भी आप काम करते हो प्रभु के नाम की महिमा के लिए, पढ़ाई करने में, कुछ सुझाव देने में या तो उपदेश करने में, इन सारे चीजों में तुम्हें चेतावनी के साथ रहना है करके तीमुथियुस को बताते हैं। பவுல் தீமோத்தேயுக்கு ஆலோசனையாக இதை குறிப்பிடுகிறார். पौलुस जो है तीमुथियुस को कुछ सुझाव के रूप में इस बातों को बताते हैं। தீமோத்தேயுவே, தேவனுடைய வார்த்தைகளை நீ வாசிக்கிற பொழுது உனக்கு ஜாக்கிரதை தேவை. जब तुम पवित्र कलाम की वचनों को पढ़ोगे तीमुथियुस, तुम्हें चेतावनी होना चाहिए। தீமோத்தேயுவே, தேவனுடைய வார்த்தைகளை பிறருக்கு புத்திமதியின் அடிப்படையில் நீ சொல்லுகிற பொழுது அதிலும் ஜாக்கிரதை தேவை. कुछ लोगों को उस वचन के बारे में बता करके वो बताएंगे तो उस समय पर भी आपको चेतावनी होना जरूरी है। தீமோத்தேயுவே, தேவனுடைய வார்த்தையை சபையிலே நீ உபதேசம் பண்ணுகிற பொழுது அதற்கும் உனக்கு தேவை ஜாக்கிரதை. तुम्हारे अंदर एक चेतावनी होना चाहिए जब तुम उपदेश करोगे कलीसिया में कोई दूसरे लोगों के सामने। இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் பரிசுத்த வேதாகமத்தை வாசிக்கிறோம், நமக்கு தேவை ஜாக்கிரதை. आज के दिन में आप पवित्र कलाम को पढ़ते हो और हम भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक चेतावनी होना चाहिए। நாம் வேதத்தை வாசிக்கிற பொழுது ஏனோ தானோ என்று வாசித்து விடக்கூடாது. हम बाइबल को जब पढ़ते हैं तो ऐसे वैसे सोचकर नहीं पढ़ना चाहिए। எனக்கு என்னது தேவை என்கிற எண்ணத்திலும் நாம் வேதத்தை வாசிக்க கூடாது. बाइबल को जब पढ़ते हैं तो समय पर मुझे इसमें से क्या चाहिए करके उसको सोचते हुए नहीं पढ़ना चाहिए। திறந்த மனதோடு பரிசுத்த ஆவியானவரே நீர் என்னோடு பேசும் என்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு எதிர்பார்ப்போடு வேதத்தை நாம் வாசிக்கிற பொழுது, जब बाइबल को पढ़ते हैं तो उस समय पर अपने हृदय को खोलकर प्रभु आप मुझसे किस तरीके से क्या क्या आप बात करना चाहते हो करके ऐसे खुले मन आप पढ़ने में आप अपने मन रखेंगे तो நமக்கு தேவையான अनेक காரியங்களை ஆண்டவர் நம்மோடு பேசுவார். हमारे लिए जो बातें चाहिए सारे बातों को उस वचन के द्वारा हमसे बात करेगा। ஆண்டவர் பேசுகிற எந்த காரியமானாலும் அதற்கு நாம் கீழ்ப்படிய அர்ப்பணித்துக் கொள்ள வேண்டும். जो भी प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बात करना चाहते हैं उस वचन के लिए अपने आप को सौंपने के लिए तैयार होना चाहिए। எப்படியாவது வேதத்தை ஒரு முறையாவது சீக்கிரத்திலே வாசித்து முடித்து விட வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தில் நாம் வேதத்தை வாசிக்க கூடாது. बाइबल को कम से कम एक बार पढ़ के खत्म करना चाहिए करके उस बात को अपने मन में रखकर नहीं पढ़ना चाहिए। अनेक கேள்விகளுக்கு தகுந்த பதில்களை எழுதி பரிசு பெற வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தின் அடிப்படையில் வேதத்தை நாம் தியானிக்க கூடாது. बाइबल को कुछ बाइबल कंपटीशन वगैरह रखते हैं तो उस समय पर सवाल वगैरह पूछेंगे, उसको उत्तर देने के लिए हमें बाइबल को नहीं पढ़ना चाहिए। வேதத்தை வாசிக்கிற பொழுது ஆண்டவர் என்னோடு பேச வேண்டும் என்று ஜாக்கிரதையோடு நாம் வாசிப்போம். जब भी बाइबल को पढ़ेंगे तो उस समय पर प्रभु हमारे से बात करें, ऐसे कुल मन होकर के उनसे हमें मतलब बाइबल को पढ़ना चाहिए। அது மட்டுமன்று, केवल इतना ही नहीं, अनेகருக்கு புத்திமதிகள் என்கிற பெயரிலே ஆலோசனைகள் நாம் சொல்வதுண்டு. कुछ लोगों को हम वचन के बातों को लेकर के कुछ लोगों को सुझाव देते हैं। அதில் கூட நாம் ஜாக்கிரதையோடு தான் பிறருக்கு புத்திமதிகளை ஆலோசனையாக சொல்ல வேண்டும். उस समय पर भी हमें चेतावनी अपने मन में होना चाहिए बहुत वचन को जब उनको बताते हैं। பிறருக்கு நாம் சொல்லுகிற அனைத்து புத்திமதிகளும் ஆலோசனைகளும் வேதத்தின் அடிப்படையிலே இருக்க வேண்டும். कुछ लोग सुझाव जब देते हैं तो सारे जो है बाइबल के वचन की रीति में होना चाहिए। பிள்ளைகளுக்கு நாம் புத்தி சொல்லுகிற பொழுது, பிள்ளைகளே நீங்கள் கர்த்தருக்குள் பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும், அதுதான் ஆண்டவருக்கு பிரியம் என்று நாம் புத்தி சொல்ல வேண்டும். अपने बच्चों को जब वचन की उस बातों को जब बताते हैं तो उस समय पर भी प्रभु इस तरह से बताते हैं, इस बात को मानकर चलो करके उसको भाई बांधकर चलाने के उस रास्ते में हमें बच्चों को चलाना चाहिए। பெற்றோருக்கு நாம் புத்தி சொல்லுகிற பொழுது, जब पिताजी को जब बातें बताते हैं, वचन को बताते हैं, பெற்றோர்களே உங்கள் பிள்ளைகளை திடனற்று போகாதபடிக்கு
அவர்களை நீங்கள் கோபப்படுத்த கூடாது என்று சொல்ல வேண்டும். जब माता पिताजी जो होते हैं तो उन समय पर उनको जब सुझाव देते हैं उनको इस तरह से बोलना चाहिए कि आप अपने बच्चों को गुस्सा ना करने दें, ऐसे ही आपको मतलब होना है करके उनको सुझाव देना चाहिए. கர்த்தருக்கு ஏற்ற சிக்ஷையை கொடுத்து பிள்ளைகளை நீங்கள் வளர்க்க வேண்டும் என்றும் நாம் சொல்ல வேண்டும். उनको इस तरह से बोलना चाहिए कि जो प्रभु किस तरह से बच्चों को चलाना चाहते हैं उन बातों को बता करके बच्चों को चलाना है करके उनकी पेरेंट्स को हमें बताना है. கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை உபதேசத்தின் அடிப்படையிலே பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் என்றும் நாம் புத்தி சொல்ல வேண்டும். बच्चों को वचन की रीति में प्रभु किस तरह से उन लोगों को चलाना चाहते हैं वचन की रीति में उनको ऐसे सुझाव देना है करके उन्हें बताना चाहिए. அதுபோலதான் ஒரு மனிதனுக்கு ஆலோசனை சொல்லுகிற பொழுது புருஷனே உன் மனைவியினிடத்தில் நீ அன்பு கூற வேண்டும் என்று நாம் புத்தி சொல்ல வேண்டும். ऐसे किसी मनुष्य को हम कुछ सुझाव देते हैं तो उस समय पर अपनी पत्नी से प्रेम करना है करके ऐसे बताना चाहिए. உன்னுடைய சொந்த சரீரத்தை போல மனைவியை நேசிக்க வேண்டும் என்று நாம் புத்தி சொல்ல வேண்டும். अपने शरीर को किस तरह से आप प्रेम करते हो वह बहुत अच्छी से देखभाल करते हो वैसे अपनी पत्नी को भी अपने आपको देखभाल करना है करके बताना चाहिए. அப்படியே ஒரு மனைவிக்கு ஒரு பெண்ணுக்கு நாம் புத்தி சொல்லுகிற பொழுது உன் புருஷனுக்கு நீ கீழ்ப்படிய வேண்டும் பயபக்தியா இருக்க வேண்டும் என்று புத்தி சொல்ல வேண்டும். ऐसे एक बहन को जब सुझाव देते हैं तो उस बहन को इस तरह से बताना चाहिए कि आपके पति देव की मानना चाहिए मानकर उनके भाई मानकर प्रभु किस तरह से वो आपको बताते हैं किस तरह से चाहते हैं उसी तरह से उनको सुझाव दे करके बढ़ाना चाहिए. கணவன் மனைவிக்கு இடையில் अनेक பிரச்சனைகள் வரலாம் சண்டைகள் வரலாம். पति पत्नी के बीच में कभी-कभी कुछ लड़ाई झगड़ा कभी-कभी हो जाता है. வேசித்தன முகாந்திரத்தினால் ஒளிய வேறு எவ்விதத்திலும் ஒருவரை விட்டு ஒருவர் பிரிந்து போக கூடாது இதுதான் தேவனுடைய சித்தம் என்கிற காரியத்தை நாம் புத்தியின் அடிப்படையிலே மக்களுக்கு சரியாக எடுத்துரைக்க வேண்டும். पवित्र कलाम क्या बताता है पति और पत्नी का वो जो रिश्ता है उस रिश्ते के बारे में बहुत अच्छी तरह से उनको बता करके कोई मतलब प्रभु के सामने कुछ गलत काम करें तभी उन दोनों का अलग होने के लिए सुझाव देना चाहिए या तो उन दोनों जो है प्रभु के सामने प्रभु के नाम की महिमा के लिए जीने के लिए उनको सुझाव देना चाहिए. வேசித்தன முகாந்திரம் இல்லாமல் எந்த ஒரு மனிதனும் எந்த ஒரு பெண்ணும் ஒருவரை விட்டு ஒருவர் பிரிந்து போக கூடாது என்றுதான் நாம் ஜாக்கிரதையோடு புத்தி சொல்ல வேண்டும். ऐसे ही हमें सुझाव देना चाहिए कोई भी मतलब प्रभु का विरोध का कुछ काम करें तभी वो जो है अलग हो जाएं या तो प्रभु के नाम की महिमा के लिए इकट्ठे होकर के एक साथ रह करके प्रभु के नाम की महिमा के लिए करने के लिए उन्हें सुझाव देना चाहिए. அப்படியே சபையிலே கர்த்தருடைய வார்த்தையை உபதேசிக்கிற பொழுதும் எந்த பின்னணியத்தில் ஆண்டவர் இதை சொன்னார் என்று நாம் யோசித்து சரியாக ஜாக்கிரதையோடு மக்களுக்கு உபதேசிக்க வேண்டும். जब कलीसिया में परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं या तो उपदेश करते हैं तो उस समय पर भी अपने मन में हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी पहले क्या बात है उसकी बात क्या है करके उसके सारे चीजों को जांच कर उन्हें उपदेश देना चाहिए. இன்னொரு வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்க போகிறோம். एक और वचन को हम पढ़ता हुआ सुनेंगे 2 தீமோத்தேயு 2ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்திலிருந்து. दूसरा तीमुथेयु में दूसरा अध्याय में 15वां वचन से पढ़ेंगे. நீ வெட்கப்படாத ஊழியக்காரனாயும் சத்திய வசனத்தை நிதானமாய் பகுத்து போதிக்கிறவனாயும் உன்னை தேவனுக்கு முன்பாக உத்தமனாக நிறுத்தும்படி ஜாக்கிரதையாயிரு. यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ कि तुम प्रभु के सामना जब करेंगे तो उस समय पर तुम्हारे ऊपर कोई भी मतलब दोष नहीं होना चाहिए. उसी तरह से आप जब प्रचार करते हो या तो मतलब किसी को सुझाव देते हो तो वो सभी में जो है प्रभु जिस तरह से चाहते हैं वो धर्मी का हृदय आपके मन में होना चाहिए करके वो बताते हैं. நாம் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்களாக இருந்தால் நமக்கு வெட்கமே இருக்க கூடாது. जब प्रभु का सेवा करने वाले हैं हम तो हमें तो कोई भी मतलब बातों पे दुख नहीं होना चाहिए. யாருக்கும் எந்நேரத்திலும் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும் பொழுது நாம் என்னுடைய நிலை என்னுடைய கௌரவம் என்னுடைய கனம் வீணாய் போய்விடுமே என்று நாம் எண்ணக்கூடாது. कभी भी जो है जब प्रभु की वचन को किसी दूसरे को बताते हैं तो उस समय पर अपने आप को बड़ापन सोचकर नहीं मैं तो प्रभु की वचन को बांटने वाला एक साधारण व्यक्ति हूं करके ऐसा अपने मन में आपको होना चाहिए.
அது மட்டுமல்ல, சத்திய வசனத்தை நிதானமாய் பகுத்துதான் மக்களுக்கு நாம் போதிக்க வேண்டும். केवल इतना ही नहीं, जब प्रभु की वचन को बांटते हैं किसी दूसरे को, उस समय पर अपने मन में उस वचन की सारे गहराई की बातों को आपको समझकर उन बातों को बताना चाहिए. எந்த வசனத்தையும் எப்படியும் எடுத்து நாம் போதிக்க கூடாது. कोई भी वचन आए तो उस वचन को ऐसे ही मतलब लेकर के प्रचार करना बहुत सही नहीं है. குறிப்பாக எடுத்துக்காட்டாக ஒரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். एक उदाहरण के लिए आपके बीच में एक बातों को आपको बताना चाहता हूं. இன்னைக்கு நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற காலம் கடைசி காலம். आज के दिन में जो हम जी रहे हैं ये तो आखिरी का समय है. இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையின் நாட்களிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आने वाला है, ऐसे समय पर है. இக்காலத்தை குறித்து வேதத்திலே என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று நிதானமாய் பகுத்து ஆராய்ந்து மக்களுக்கு நாம் எடுத்துரைக்க வேண்டும். इसलिए जब वो किसी दूसरे को बताते हैं, प्रचार करते हैं या तो उपदेश करते हैं, तो उस समय पर सारे चीजों को देखकर समझकर बाइबल में क्या लिखा हुआ है, क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं, तो उन सारे बातों को समझकर उन्हें प्रचार करना चाहिए. இந்த காலத்திற்கு சம்பந்தம் இல்லாமல் பல ஆண்டுகளுக்கு, பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு வேதத்திலே நிறைவேறத்தக்கதாக இருந்த அந்த தீர்க்க தரிசன வசனங்களை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு சமாதானம் வரும், கொள்ளை நோய் வராது என்று சாதகமாக நாம் பேசிவிட முடியாது. इसलिए हमें ऐसे प्रचार नहीं करना चाहिए कि 200 साल पहले, 200 साल पहले या तो 500 साल पहले इस तरह से वचन लिखा हुआ है, इसलिए आपको कोई भी मतलब परेशानी नहीं होगा, सारे तेरे मतलब आंसुओं को प्रभु पहुंचाएंगे. वो ऐसे मतलब प्रचार नहीं करना चाहिए, उपदेश नहीं करना चाहिए. ஆதியாகமத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரைக்கும் 66 புத்தகங்கள் உண்டு. उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 66 किताब है इसमें बाइबल में. வேத புத்தகத்திலே பல காலகட்டங்கள் உண்டு. बाइबल में कई मतलब काल के बारे में बताते हैं और देखते भी हैं. ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஆண்டவர் வெவ்வேறு விதமாக தன்னுடைய வார்த்தையை ஜனங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். अपने लोगों के बीच में जब प्रभु बात करते थे तो कई तरीके को उन्होंने मतलब अपनाया है, कई तरीके से उन्होंने बात किया है. நாம் வாழுகிற இக்காலத்திற்கு ஏற்ற தேவனுடைய வார்த்தைகள் என்ன என்பதை வேதத்திலிருந்து சரியாய் நிதானித்து பகுத்து ஜாக்கிரதையாக போதிக்க ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கிறார். आज के दिन में भी प्यारे प्रभु हमें बुलाते हैं कि आजकल क्या बात को किस तरीके से हमें प्रचार करना है या तो उपदेश करना है, उस तरीके को जांच कर समझ कर हमें करना चाहिए. இதை தாண்டியும் பிரசங்கிக்கிற நாம் ஆண்டவருக்கு முன்பதாக உத்தமர்களா உத்தமிகளா என்று ஜாக்கிரதையோடு நம்மை சீர்தூக்கி ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். इसलिए हमें एक बात को बहुत जरूरी अपने मन में रखना है कि हम जो प्रचार करते हैं या तो उपदेश करते हैं, मैं इस बात की लायक हूं यदि इसके योग्य हूं करके मुझे अपने आप को समझकर जानकर उसमें मतलब हमें करना चाहिए, उस काम को करना चाहिए. பவுல் மூலம் ஆண்டவர் தீமோத்தேயுக்கு ஜாக்கிரதையாக இரு என்று சொன்ன ஆண்டவர் पौलुस के द्वारा तीमुथियुस को प्रभु बताए थे कि तुम्हें बहुत चेतावनी के साथ रहना चाहिए. இன்றைக்கு உங்களையும் என்னை பார்த்து இத்தகைய காரியங்களில் நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். आज के दिन में भी आपको और हमें देख करके प्रभु कहते हैं कि तुम्हें इन बातों पे बहुत चेतावनी के साथ रहना चाहिए. இந்த வேத வார்த்தையின்படியே ஜாக்கிரதையா இருக்க என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி இந்த ஜெபத்திலே நீங்கள் பங்கு கொள்ளுங்கள். ये जो वचन को हमने सुना है, इस वचन के मुताबिक मैं चलूं, मुझे प्रभु अनुग्रह कर करके आप अपने आप को प्रभु के सामने सौंप कर प्रार्थना करेंगे. கண்களை மூடி ஜெபம் செய்வோம். अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करें. அன்புள்ள நல்ல கர்த்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். हे प्यारे प्रभु, आपको धन्यवाद और स्तुति हो. கவனமாய் நாங்கள் வாழ எங்களுக்கு நீ போதித்தீரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. बहुत चेतावनी के साथ हमें रहने के लिए आपने सुझाव दिया है, वचन को आपने बताया है, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं. வேத வசனங்களை கவனத்தோடு வாசிக்க எங்களுக்கு கிருபை தாரும். आपके पवित्र कलाम के वचन को जब पढ़ते हैं तो बहुत चेतावनी के साथ पढ़ें. கவனத்தோடு பிறருக்கு புத்தி சொல்ல உபதேசிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும். किसी और को जब सुझाव देते हैं या तो उपदेश करते हैं तो उस समय पर भी बहुत चेतावनी के साथ करने के लिए अनुग्रह करें. ஆண்டவரே, உம்முடைய ஊழியத்தின் நிமித்தம் வெட்கப்படாத ஒரு நல்ல ஊழியனாக விளங்க எனக்கு கிருபை தாரும். हे प्रभु, जब आपके सेवा करने के लिए कहीं पर भी जाते हैं, किसी और को उपदेश करते हैं, प्रचार करते हैं, उस समय पर भी शर्मिंदा ना हो, आपके लिए कुछ भी मतलब करने के लिए हमें अपने आप में मतलब सामर्थ दे करके हमें चलाएं. உம்முடைய வேத வாக்கியங்களை எப்படியும் போதித்து விடாதபடிக்கு பகுத்து நிதானமாய் சரியாய் போதிக்க சத்தியாவியானவரே என்னை
என்னை திடப்படுத்தும் தைரியப்படுத்தும் என்னை பழக்குவியும் हे प्रभु आपके वचन को जब हम प्रचार करते हैं तो उस समय पर भी उस वचन की गहराई की बातों को समझकर उस हिसाब से जो आप उन लोगों से किस तरीके से बात करना चाहते हो और क्या बताना चाहते हो उन बातों को समझकर प्रचार करने के लिए अनुग्रह करें। ஊழியர்களாகிய நாங்கள் விசுவாசிகளாகிய நாங்கள் எங்களுடைய உத்தமத்தை காத்துக்கொள்ள ஜாக்கிரதையாய் வாழ எங்களுக்கு கிருபை தாரும்। हे प्रभु हम जो आपकी सेवा को करते हैं हम किसी दूसरे के सामने शर्मिंदा ना हो, आप क्या चाहते हो उस धर्म की हृदय हमारे अंदर हो जाए, आपके रास्ते में बहुत अच्छी तरह से चलने वाला एक सेवा करने वाला बनकर रहने के लिए अनुग्रह करें। இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, यीशु मसीह के नाम से पिता, ஆமென்। आमीन।